ایک شخص تھا تو غریب لیکن انتہائی خوش بخت تھا۔ اس کا گھرانہ ایک بیوی، 5 بچوں، 2 بہنوں اور بوڑھی والدہ پر مشتمل تھا۔ اس شخص کی ایک پسماندہ علاقے میں سبزی کی دکان تھی۔ نہ تو اس کے پاس مال تھا کہ کسی اچھی جگہ دکان لے سکتا، نہ اتنے وسائل تھے کہ اس سے بہتر سامان رکھتا۔ اس کا گھر بھی بوسیدہ اور ٹوٹا پھوٹا تھا۔ مجازی طور پر ہی اسے گھر کہا جا رہا ہے، ورنہ صرف ایک کمرہ اور چھوٹا سا صحن تھا۔ سارا گھرانہ اسی ایک کمرے میں سوتا، بلکہ کچن نہ ہونے کے باعث وہ کھانا بھی اسی کمرے میں پکاتے تھے۔ جب وہ شخص شام کو گھر لوٹتا، اس کے ہاتھ میں سبزی، گوشت اور روٹیاں ہوتی۔ اس کے گھر والے خوش دلی اور خندہ پیشانی سے اس کا استقبال کرتے، اس کے ہاتھ سے سامان پکڑتے اور کھانا تیار کرنے میں لگ جاتے۔ ہر روز انہیں گوشت میسر نہیں آتا تھا۔ جب سیل اچھی ہوتی تو وہ گوشت خریدتے، ورنہ سبزیوں پر ہی گزارا کرتے۔ ان کے پڑوس میں اعلیٰ عدلیہ کے ایک قاضی صاحب رہائش پذیر تھے۔ وہ اس خاندان سے بہت متاثر تھے کہ یہ لوگ غربت اور تنگی کے باوجود انتہائی صابر اور شاکر تھے۔ قاضی صاحب اکثر ان لوگوں کی مثال دیتے ہیں کہ میں نے زندگی میں ان سے زیادہ سعادت مند گھرانہ نہیں دیکھا۔ جب شام کو صاحب خانہ دکان سے لوٹتے ہیں تو سب گھر والے پرجوش انداز میں ان کا استقبال کرتے ہیں۔ اس موقع پر اکثر ان کے گھر سے حمد و ثنا کے کلمات کی آوازیں آتی ہیں۔ میری یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں اس خوشنما منظر سے محفوظ ہو سکوں۔ پھر یہ لوگ کھانا تیار کرتے ہیں اور بڑے برتن میں ڈال کر سب مل کر کھاتے ہیں۔ ان کے کھانے کا اختتام بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور مسنون دعاؤں پر ہوتا ہے۔ آخر میں یہ اپنے بوسیدہ لیکن صاف ستھرے بستروں پر بڑی خوشی اور قناعت کے ساتھ آرام کرتے ہیں۔ یہ کسی بڑے دنیاوی مال و متاع کی تمنا نہیں رکھتے تھے۔ ان کی صرف یہی خواہش تھی کہ صحت و عافیت کے ساتھ ان کی زندگی گزرتی رہے اور انہیں کسی انسان کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ موسم خزاں کی ایک شام تھی۔ یہ لوگ حسب معمول اپنے سربراہ خانہ کے منتظر تھے۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ ان لوگوں نے دروازہ کھولا تو سامنے 3-4 پولیس والے کھڑے تھے۔ ان کے ساتھ ایک ایمبولینس بھی تھی۔ پولیس والوں نے انہیں یہ افسوسناک خبر دی کہ صاحب خانہ ایک ٹریفک کے حادثے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ اس شخص نے شام کے وقت اپنی دکان بند کی، پڑوس میں قصاب کی دکان سے گوشت خریدا، نان بائی سے روٹیاں لی اور سبزیوں کا تھیلا، گوشت اور روٹیاں لے کر گھر کی طرف چل پڑا۔ سڑک عبور کرتے ہوئے ایک تیز رفتار گاڑی نے اسے کچل دیا اور یہ بیچارہ موقع پر ہی جاں بحق ہو گیا۔ اس دلخراش سانے کی وجہ سے قرب و جوار کے لوگ بھی جمع ہو گئے۔ انہوں نے اس کی کفن دفن کا انتظام کیا۔ اگلے دن صبح کے وقت اس کی نماز جنازہ ادا کر کے اسے دفن کر دیا گیا۔ سارے گھر کی کفالت کا انحصار اس اکیلے شخص کی آمدنی پر تھا۔ اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ گھر کو کیسے چلایا جائے۔ اس شخص کے سب سے بڑے بیٹے کی عمر 15 سال تھی۔ یہ ہائی اسکول میں زیر تعلیم تھا۔ اس نے تعلیم کو خیر بات کہہ دیا اور اپنے باپ کی دکان کھول لی۔ زندگی اسی روٹین سے گزرنے لگی، لیکن اب ان کی مسکراہٹیں غائب ہو چکی تھیں۔ سب لوگ افسردہ افسردہ رہتے۔ کھانا کھاتے وقت بھی اکثر ان کی آنکھیں بھیگی رہتی۔ اس گھر کی سعادت اس گھر کے محبوب کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ انتہائی مشکل دن سست روی سے گزرتے رہے، یہاں تک کہ 3 سال گزر گئے اور بڑے بیٹے کی عمر 18 سال ہو گئی۔ ایک دن اچانک اسے حکومت کی طرف سے فوجی خدمات کے لیے طلب کر لیا گیا۔ والد کے بعد گھر کا سارا انحصار اسی لڑکے پر تھا۔ گھر والے بھی بہت پریشان ہوئے کہ اب کیا کرنا چاہیے۔ وہ سب سوچ بچار کرنے لگے، کیا دوسرے بیٹے کو اسکول چھڑوا کر دکان پر بٹھا دیا جائے؟ ایسی صورت میں اس کی تعلیم کا کیا بنے گا؟ اگر وہ اپنی تعلیم جاری رکھتا ہے تو گھر والوں کا گزارا کیسے چلے گا؟ بہت زیادہ سوچ بچار کے بعد وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ انہیں یہ گھر فروخت کر دینا چاہیے تاکہ اپنے بڑے بیٹے کی جبری فوجی خدمت کے عوض میں پیسے جمع کروائے جا سکیں۔ یہ لوگ عراق میں رہائش پذیر تھے۔ وہاں یہ قانون تھا، ہر گھر سے ایک نوجوان کو حکومت زبردستی فوج میں بھرتی کر لیتی اور اس پر معاوضہ بھی کچھ نہ دیتی تھی۔ ہاں، اگر کوئی اس جبری مشقت سے بچنا چاہتا تو اس کے لیے لازم تھا کہ وہ سرکاری خزانے میں 4000 دینار جمع کروائے۔ چنانچہ اس رقم کی فراہمی کے لیے گھر والوں نے مکان فروخت کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ اگرچہ اس فیصلے میں بھی ان کی کیفیت اس بکری کی سی تھی جس کے بارے میں
सोचा जा रहा है कि इसे ज़बह करके इसकी खाल उतारी जाए या वैसे ही खींच ली जाए। फौजी खिदमात के लिए धर लिए जाने वाले बेटे को एक करीबी शहर में तरबियत के लिए एक अस्करी इदारे में भेज दिया गया। वो बादले नख्वास्ता ही इधर आया था। असलाह की तरबियत में इसका दिल बिल्कुल नहीं लगता था। इंस्ट्रक्टर बोलते रहते मगर ये अपने ख्यालों में गुम रहता। इसके जहन में अपने घरेलू हालात घूमते रहते। असातिज़ा ने भी कई मर्तबा इसकी तवज्जो दिलाई, वार्निंग्स भी दी, लेकिन इसका जिस्म तो यहाँ था, जहन कहीं और अटका हुआ था। एक दिन उस्ताद ने इसे बिठाकर इसका असल मसला पूछा तो इसने जवाब में अपनी सारी बकता कह सुनाई। अब उस्ताद ने इसरार करना छोड़ दिया और इसका मसला अपने ऑफिसर के सामने पेश किया। ऑफिसर ने इसके मसले का कोई हल निकालने की बजाय इसकी ड्यूटी किचन में लगा दी। अब वो यहाँ बर्तन धोता, गोश्त काटता, आग जलाता और खाना तकसीम करता। शब रोज इसकी यही मसरूफियात थी। इधर इसकी माँ की भी यही कैफियत थी। वो बज़ाहिर तो चलती फिरती, खाती पीती और सोती जागती थी, लेकिन इसका जहन किसी और ही दुनिया में गुम रहता था। इसने अपने घर की रजिस्ट्री गिरवी रखकर एक प्रॉपर्टी डीलर से कुछ रकम घरेलू अखराजात के लिए उधार ली और अपना मकान फरोख्त करने के लिए लगा दिया। मुख्तलिफ खरीदार इनका मकान देखने के लिए आते रहे। आखिर 20 दिन के बाद इनका मकान 4000 दिनार में फरोख्त हो गया। फिर मजीद 9 दिन कागजी कार्रवाई में लग गए। सिर्फ एक दिन बाकी बचा था। इनके यहाँ ये ज़ाब्ता था कि 30 दिन के अंदर अंदर इस जबरी फौजी खिदमत के इवज में 4000 दिनार जमा करवाए जा सकते थे। 30 दिन गुजरने के बाद ये मुआवजा भी कबूल नहीं किया जाता था। इस खातून ने ये मुआवजा जमा करवाने के लिए इस शहर जाना था जिसमें इसका बेटा था। ये शहर 240 किलोमीटर के फासले पर था। जब वो बस स्टॉप पर पहुंची तो शहर जाने वाली इसके अलावा कोई और मुसाफिर नहीं था। इसने काफी देर तक सवारियों का इंतजार किया, लेकिन किसी को आना था ना आया। वो हर पल अंगारों पर लौट रही थी। इसके सारे खानदान की जिंदगी और नामूस दांव पर लगी हुई थी। इसने बस वाले से कहा, तुम गाड़ी लेकर चलो, मैं सारी बस का किराया अदा करूंगी। ड्राइवर इस अकेली खातून को लेकर चल पड़ा। रास्ते में बातों बातों में इसने सादा लो खातून से ये मालूम कर लिया कि इसके पास 4000 दिनार है। ड्राइवर की नीयत बदल गई। रास्ते में एक वीरान जगह पर जाकर ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी कर ली और खंजर की नोक पर इस खातून से नीचे उतरने के लिए कहा। इसने खातून पर पे दर पे वार किए और इसे नीम मुर्दा हालत में छोड़कर चला गया। इसने खातून का बैग अपने कब्जे में ले लिया। फिर वो वापस आने की बजाय इसी शहर की तरफ रवाना हो गया जिधर जा रहा था, ताकि शक की कोई गुंजाइश ना रहे। वो गाड़ी लेकर बस स्टैंड पर पहुंच गया। इसके साथियों ने समझा शायद इस बस में आने वाली सवारियां रास्ते में उतर गई हैं। ऐसा होता रहता था, इसलिए ये कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। वापसी पर ड्राइवर इसी रास्ते से गुजरा। जब वो इस जगह के करीब पहुंचा जहां इसने जुर्म का इर्तिकाब किया था, इसके दिल में ख्याल आया कि एक मर्तबा इस औरत की लाश पर नजर डाल लूं। इसने मुसाफिरों से बहाना लगाया, मैं क़ज़ाए हाजत के लिए जाना चाहता हूँ, चंद मिनट बाद वापस आता हूँ। और वो इस वादी की तरफ गया। इसे कराहने की एक नहीफ सी आवाज सुनाई दी। ये देखकर वो गुस्से से कहने लगा, ऐ मलऊन औरत, तुम अभी तक जिंदा हो? फिर एक बड़े पत्थर की तरफ झुका ताकि इसके जरिए इस खातून का सर कुचल दे। जब इसने पत्थर उठाया तो पत्थर के नीचे से एक जहरीले सांप ने इसे डस लिया। इसके मुंह से एक दिलखराश चीख निकली और इसने तड़पना शुरू कर दिया। मुसाफिर इसकी आवाज सुनकर भागे भागे वहां आए। इन्हें देखकर बड़ा ताज्जुब हुआ कि वहां एक जांबाज खातून भी थी। खातून ना सिर्फ इतना ही कह सकी, इस ड्राइवर से मेरा सामान वापस लो। वो ड्राइवर इस पोजीशन में नहीं था कि ज्यादा मुजाहमत कर सकता। इसने बताया कि इस खातून का बैग मैंने गाड़ी में फला जगह पर छुपाया हुआ है। वो बैग वसूल करके खातून के हवाले कर दिया गया। फिर मुसाफिरों ने दूसरी तरफ से आने वाली एक बस को रोका जो इसी शहर को जा रही थी जहां खातून जाना चाहती थी। उन्होंने इस गाड़ी के ड्राइवर से दरख्वास्त की कि इस खातून और ड्राइवर को हॉस्पिटल पहुंचा दे। ड्राइवर खुश दिली से इस काम के लिए आमादा हो गया। वो मुजरिम ड्राइवर तो जिस्म में जहर फैलने की वजह से रास्ते ही में दम तोड़ गया। इस खातून को अलबत्ता हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। खबर मिलने पर पुलिस वाले भी पहुंच गए।
औरत मुसलसल बेहोश थी। इसके सामान में पुलिस वालों को इस खातून के बेटे का एड्रेस मिल गया। पुलिस ने बेटे को खबर दी और वो भी फौरन हॉस्पिटल पहुंच गया। डॉक्टर इस खातून को होश में लाने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे, क्योंकि ज्यादा देर बेहोश रहना इसके लिए जानलेवा साबित हो सकता था। अगले दिन इसे होश आया। इसने हल्की सी आंखें खोली। बेटे पर नजर पड़ी तो माँ का चेहरा खुशी से खिल उठा। इसने अपने बेटे से सिर्फ इतना कहा, बेटा मैं रकम ले आई हूँ, जबरी फौजी खिदमात का मुआवजा अदा करके फौरी रुखसत हासिल कर लो। फिर इस पर गुनूदगी सी तारी हो गई। लड़के ने वो रकम जमा करवा दी और इसे इजाजत मिल गई। इस खातून की हालत आहिस्ता आहिस्ता संभलने लगी। एक दिन आया कि वो हॉस्पिटल से मुकम्मल सेहतयाब होकर फारिग हो गई। इस वाक़या की शोहरत हर तरफ फैल गई। इस वाक़या में अल्लाह ताला की कुदरत के कई मज़ाहिर थे। ड्राइवर पहले मर्तबा अपनी नीम मुर्दा हालत में छोड़ गया। वापसी पर अगर ड्राइवर वहां ना रुकता तो शायद किसी को इस खातून के बारे में बिल्कुल पता ना चलता, क्योंकि इस वादी की तरफ कोई जाता ही ना था। जहरीले और मूजी जानवरों की वजह से चरवाहे भी इधर का रुख नहीं करते थे। इस औरत की आवाज इतनी नहीफ थी कि किसी को सुनाई ना देती। अगर ड्राइवर सांप के डसने से इतनी जोर से ना चीखता तो कोई इस औरत तक नहीं पहुंच सकता था। अगर इस औरत को इस शहर में जो इसकी मंजिल थी ना पहुंचाया जाता तो वो अपने बेटे तक ना पहुंच पाती। अगर इसे चंद लम्हों के लिए होश न आता तो वो अपने बेटे को ये ना बता पाती कि रकम का इंतजाम हो गया है। नतीजतन इसके बेटे को जबरी फौजी खिदमात से रहाई ना मिलती। ये सब इस अलीम और कदीर जात की तदबीरें थीं कि हर गुत्थी सुलझती चली गई। जब इस किस्से का चर्चा हुआ तो ये बात इनके साबका पड़ोसी जज साहिब तक भी जा पहुंची। उन्होंने अपने दोस्त, अहबाब और मोहल्लादारों से कहा कि जरूरत और आजमाइश की इस घड़ी में इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इन लोगों ने पैसे इकट्ठे करके इनका मकान खरीदने वाले शख्स से राब्ता किया। इस तक भी ये वाकया पहुंच चुका था और वो भी खुशी खुशी ये मकान वापस करने पर तैयार हो गया। रकम इतनी जमा हो चुकी थी कि 4000 दिनार जमा करने के बावजूद 3000 दिनार बच गए। इस रकम के जरिए मकान की हालत को बेहतर बनाया गया। लड़के ने दोबारा वालिद की दुकान संभाल ली। अब सूरत हाल बदल चुकी थी। इसके पास दूर दराज से ग्राहक आने लगे थे। हर वक्त खरीदारों का तांता बंधा रहता। कुछ अरसे बाद इसने अपनी दुकान निस्बतन बेहतर जगह पर मुंतकिल कर ली। इसका कारोबार खूब चल पड़ा। अब जिंदगी बड़ी आसूदगी से गुजर रही थी। उसरत और तंगी में भी वो लोग अल्लाह की जिक्र और शुक्र को नहीं भूले थे। अब आहिस्ता आहिस्ता फराखी आ रही थी तो अब भी वो स्पास गुजारी के जज्बे से सरशार रहते थे। कई साल गुजर गए। इनके बच्चे यके बाद दीगरे तालीम से फारिग होने लगे। एक बेटा इंजीनियर बन गया, दूसरा डॉक्टर और तीसरा आर्मी ऑफिसर बन गया। अब इनका खाना सिर्फ चाय या रोटी और सब्जी नहीं होती। हालात अब ऐसे नहीं रहे कि इन्हें कभी कभार गोश्त मुयस्सर आता हो। इनके दस्तरखान पर इनवाओ इकसाम के खाने होते। ये खानदान लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है कि ये लोग तंगी और फराखी किसी हालत में भी अल्लाह को नहीं भूले। 1385 हिजरी में एक वक्त ऐसा भी आया कि ये खानदान दजला के किनारे बगदाद के बड़े पुल के करीब एक बहुत बड़े महल नुमा घर में मुंतकिल हो गया। अब ये खानदान 4 खानदान बन चुके हैं। तीनों बड़े बेटों की शादियां हो चुकी हैं। अल्लाह ताला ने इन्हें औलाद की नेमत से भी नवाज रखा है। अब भी इस घर के सब अफराद मोहब्बत और एहतराम के अटूट रिश्ते में जुड़े हुए हैं। कभी इन्हें एक दूसरे से शिकायत पैदा नहीं हुई। वालिद की वफात से लेकर इनकी वालदा ही घर की सरबराह हैं। घर का हर फर्द इनकी राय का बेहद एहतराम करता है। इससे पहले कि हम इस वाकया को खत्म करें, इसके सबसे अहम नुक्ते की तरफ तवज्जो दिलाना चाहते हैं। इस खातून से पूछा गया, जब ड्राइवर ने खंजर के पे दर पे वार करके आपको एक वीरान बयाबान में फेंक दिया था, इस वक्त आपकी कैफियत क्या थी? इतना ज्यादा खून बह जाने और इतने गहरे घाव लगने के बावजूद आप किस तरह जिंदा हैं? खातून ने बताया, इस सारी मुद्दत के दौरान मेरी ज़बान पर बस यही अल्फाज थे, ए आसमान और जमीन के मालिक, तू मेरी हालत को जानता है। अपनी कुदरत से मेरे लिए बेटे की जबरी फौजी खिदमत का मुआवजा सही वक्त पर पहुँचाने के असबाब मुहैया फरमा दे, ताकि वो घर वापस आ सके और अपने घर वालों की किफायत की जिम्मेदारी निभा सके। अल्लाह ताला ने इस खातून की दुआ कबूल फरमा ली। इसका माल औलाद दोनों इसे दोबारा मिल गए। मालिक हकीकी ने इसके दुश्मन से इंतकाम भी ले लिया
اور ان کی تنگ و اسرت بھی فارغ البالی اور آسودگی میں بدل گئی۔ سچ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، مظلوم کی بد دعا سے بچ کر رہو کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی۔